اپنے وقت کی ثقافت اور فن تعمیر کی علامت سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی 151 سالہ قدیم عمارت منہدم کر دی گئی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن 151 سالہ قدیم تعمیراتی شاہکار تھا جو حیدرآباد کے نظام کے دور کا شاندار ورثہ تھا، تاہم اب یہ عمارت صرف لوگوں کی یادوں میں باقی رہ گئی ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سن 1874 میں برطانوی دور میں حیدرآباد کے نظام نے تعمیر کروایا تھا۔ سکندرآباد اسٹیشن کی تجویز سن 1877 میں کی گئی تھی۔ نظام حیدرآباد میر محبوب علی خان نے ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کا حکم دیا۔ وہ حیدرآباد ریاست کو باقی ہندوستان سے مربوط کرنا چاہتے تھے اور پھر اسی سال سکندرآباد واڑی لائن کی تعمیر شروع ہوئی۔ سکندرآباد واڑی لائن اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کا کام 9 اکتوبر 1874 کو مکمل ہوا، جس کے بعد حیدرآباد میں ریلوے متعارف کروائی گئی۔ سن 1916 تک یہ نظام گارنٹیڈ اسٹیٹ ریلوے کا مرکزی اسٹیشن رہا۔ سن 1951 میں قومی آنے کے بعد یہ انڈین ریلوے کا حصہ بن گیا۔ نظام فن تعمیر کے مطابق عمارت کا ڈیزائن ایک قلعے کی شکل میں تھا۔ اب اس اسٹیشن کو جدید ایئرپورٹ کی طرح بنانے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے کرماگوڑا ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے کرماگوڑا ڈویژن میں گاندھی کے مجسمے اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایم ایل اے نے بتایا کہ بائی لین اور سی سی روڈ کے کاموں کے علاوہ سیوریج لائن کا کام بھی جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ یہ ترقیاتی کام 28 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے جاری ہیں۔ جعفر حسین معراج نے کہا کہ کچھ سڑکوں کے کام ابھی زیر التوا ہیں اور رمضان کے مقدس مہینے کے بعد ان کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ علاقے کے لوگوں نے ایم ایل اے جعفر حسین معراج کو ان کی کوششوں کے لیے مبارکباد پیش کی۔ مجلس کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کرماگوڑا کے کارپوریٹر شفاعت علی، مجلس کے جنرل سیکرٹریز، ایریا پریزیڈنٹس، پرائمری یونٹ ممبرز و دیگر کے تعاون کے لیے بھی ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ کرماگوڑا ڈویژن یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی رین بازار گاندھی کے پتلے کے بازو کے جتنے بھی یہاں کے بائلنس تھے، چھوٹے روڈز تھے، اس کا آلریڈی پہلے ہم نے سیوریج کا کام کروا دیا تھا۔ اب سی سی روڈ کا کام جو جملہ لاگت 28 لاکھ روپے کی ہے، جس میں تقریباً ہم نے روڈوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل سے کافی روڈ مکمل ہو گئے۔ کچھ روڈ اور تھوڑے سے باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور بضرور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر بہت جلد انشاءاللہ رمضان کے بعد میں وہ روڈوں کا بھی کام ہم اللہ چاہے تو تکمیل کرا دیں گے، جس کے لیے میں یہاں پر آیا تھا انسپیکشن کرنے۔ میرے ساتھ میں مقامی کارپوریٹر کے علاوہ محلے کے تمام لوگ، اپنائے وطن بھائی بھی میرے ساتھ میں، ہندو بھائی بھی ساتھ میں ہیں، اس کے علاوہ بستی کے جتنے ہر گھر سے ہر افراد نے باہر نکلا، اپنا نہ صرف جماعت کا شکریہ ادا کیا بلکہ کافی تعداد میں لوگ گلپوشی بھی کیے اور یہی کہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تقریباً روڈ مکمل ہو گئے ہیں، جس کے لیے نقیب ملت اور حبیب ملت کا شکریہ بھی ادا کرے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پارٹی کے یہاں کے پورے ذمہ دار، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر کے ساتھ ساتھ یہاں کے سامنے کے بھی جو ذمہ دار ہے رین بازار گاندھی کے پتلے کے اطراف اور اکناف کے، وہ لوگ کا بھی بہت بڑا اس میں تعاون تھا۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے رات دن محنت کی ہے، یہاں ٹھہر کے راتوں میں روڈ بھی پڑ رہی، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان نے ایک لڑکی کے اہل خانہ کی مبینہ ہراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود کے قلندر نگر کے رہنے والے محمد عمران نامی نوجوان نے ایک لڑکی کے اہل خانہ کی جانب سے مبینہ ہراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ عمران چندرن گٹا کی رہنے والی ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات میں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب لڑکی کے والد کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بات چیت کی
और शादी पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन बाद में इमरान के खिलाफ हरासा करने की शिकायत दर्ज करवाई गई। बताया जाता है कि पुलिस की जानिब से इमरान की काउंसलिंग की गई, जिसके बाद घर जाकर उन्होंने अपनी जान ले ली और मरने से पहले लिखे गए एक नोट में लड़की के अफराद खानदान खुसूसन लड़की के वालिद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। संतोष नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। शहर हैदराबाद के इलाके किशन बाग में एक दुकान में चोरी करने वाले 2 लड़कों को डांटने पर उन बच्चों के रिश्तेदारों ने दुकान मालिक व दीगर अफराद पर हमला कर दिया। दुकान को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस हदूद के किशन बाग इलाके में एक दुकान में 2 लड़कों ने सरका किया था। दुकान मालिक ने इस बात का इल्म होने पर उन लड़कों को डांटा और मसरूखा चीज वापस ले ली थी। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद एक गिरोह ने मुबैना तौर पर दुकान पहुंचकर दुकान मालिक, उनके फर्जंद और चंद ग्राहकों पर हमला कर दिया। दुकान में मौजूद सामान को तोड़ दिया गया और रकम भी लूट ली गई। दुकान को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। मुतासरा शख्स ने इस वाक़े के खिलाफ अत्तापुर पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मेरी दुकान पे आज शाम में करीब 10 बजे अटैक हुआ। 60 से 70 जने मिलकर हमला करे। आपकी दुकान कहाँ पर है भाई? मेरी दुकान किशन बाग गुरुद्वारे से पहले है। तो छोटी सी बात के ऊपर बच्चे को आगे मारे। मैं आया, मैं आने के बाद में फिर मेरे पे जो अटैक हुआ। वजह मारने की लड़ाई होने की वजह क्या है? ये दोपहर में उन लोगों का चोरी करे, 2 बच्चे आके उनको डांट के करके भिजा दिए। दोपहर में जब चोरी हुई तो कंप्लेंट क्यों नहीं करे आप पीएस में? छोटे बच्चे थे, डांट के करके भिजा दिए। सामान ले ली, घड़ी ले ली हमारी, ये लेके भिजा दिए। अब उसके बाद में पूरे गंजेट यहाँ जमा हो गया है। आने के बाद में मेरे बच्चे के ऊपर हमला करे। कितने बजे हुआ ये हमला? ये बच्चे के ऊपर 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे हमला हुआ जी। उसके बाद में मैं फतेह दरवाजे से था। जब आपके बच्चे के ऊपर 8:30 को हमला हुआ बोल के आपको मालूम पड़ा तो पीएस में उस टाइम भी कंप्लेंट नहीं करे आप? नहीं, बच्चे से बात करने आए थे ना, हमला करने आए थे। मैं यहाँ बस्ती के 2 जनों को भिजाया, बात करके समझा के भिजा दिया। उसके बाद में 9:45 के बाद में पूरी गैंग बना के आके बच्चे पर हमला करी। मैं आया, आने के बाद में उन लोगों फिर मेरे पे भी अटैक कर दिए। उसके बाद उन लोगों करीब 60 से 70 जने थे, पूरे गेट तोड़ दिए, दुकान पूरी तहस नहस कर दिए, पूरे दुकानों का सामान तोड़ फोड़ कर दिए। गले में जो पैसे थे पूरे तकरीबन बच्चों को मालूम है, पूरे पैसे लूट लेके चले गए। और जो है सो मेरा पूरा सामान अंदर का बाहर का आप देख सकते, गेट तोड़ दिए, हर एक चीज़ डैमेज करे हुए और भारी नुकसान करे मेरा। और मेरे को हमला करे और चाकू लेके आए उन लोग। आप चाकू भी देख सकते हैं, दुकान में पड़ी हुई है। हर एक चीज़ से उन लोग मेरे पे हमला करे सो। आपके गले में से कुछ पैसे भी गए बोल के? जी हाँ, पैसे जितने भी थे सुबह से लेकर शाम तक का जो गला था। अंदाजा कितने पैसे थे? अंदाजा तो बच्चे को मालूम है, बच्चे से पूछा तो मैं 70 से 80 हज़ार में बच्चा बोल के बोला मेरे को। मेरा तो सुबह से नहीं था, बच्चा था बैठा हुआ। आपकी दुकान में सीसी कैमरे नहीं? हम लोग यहाँ से दुकान खाली करे बोल सीसी कैमरे पूरे निकाल दिए यहाँ से। दुकान की है भाई? मेरी यहाँ पे 50% की है। मेरे पास अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, हर चीज़ का माल आता। कितने साल? हैदराबाद के पुराने शहर में सीसी रोड डालने के दौरान बहस के बाद मुकामी लोगों ने बल्दी कॉन्ट्रैक्टर पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के तकिया जमालबी इलाके में कल रात देर गए सड़क की तनसीब के दौरान मुकामी लोगों और गुत्तेदार के दरमियान बहस हुई, जिसके बाद 15 लोगों ने गुत्तेदार पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। जमालबी के तकिए में GHMC रोड डाल रहे थे। GHMC का कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, तो मिनोल उठाओ बोल के बोल रहे थे। तो मतलब काम चलते चलते उठाते, बोलते कि आके पूरे 15-20 जने मिल के मारे। नाक में से मुँह में से खून जा रहा था मैं जी। मैं आके कंप्लेंट जा, साहब एक्शन नहीं ले रहे, कल देखेंगे बोल के बोल। कौन बोल रहे? हमारे गोपाल साहब बोल के है इधर। उन्होंने कल देखेंगे करेंगे वो बोल के बोल रहे। मेरी वीडियो है पूरी। किस चीज़ से मारे आपको? 2 बजे के टाइम पे। किस चीज़ से मारे आपको? हाथों से मारे, लटों से, उससे मारे। कोई पर्सनल है क्या आपकी? मैंने पर्सनल है, मैं GHMC का कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। कभी पहचानते आप उन लोगों को? हाँ, वहाँ देखा तो पहचान तो लोग वहाँ के रहने वाले। नहीं, कभी इससे पहले भी मुलाकात हुई थी? मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई मेरी। अच्छा, आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? मैं रोड डाल रहा था। रोड डाल रहे थे तो क्या लेके, किस चीज़ को लेके बहस हुई? वो मिनोल था उनके घर के पास में, टाउन में था। बोला काम करते करते आगे आपका मिनोल ऊपर करते बोला। बोले तो वहाँ के एक एरिया प्रेसिडेंट थे MIM के, उनको ढक ले। मैं बोला भाई अपन कर देते बाद में, बोला आगे तक काम चला बाद में कर देंगे बोल के बोला।
तो उन्होंने आके बोले आके उनको भी ढकले, मेरे को भी ढकल के मारे, एरिया प्रेसिडेंटों को भी मारे वहाँ के, जमालवी के तकिए भी। तो कितने टोटल कितने लोगों को मारे? 15 जने थे वो लोग। अच्छा, वो लोग 15 लोग नया थे और उन लोगों के साथियाँ थे। अच्छा, वजह कुछ भी नहीं है, सिर्फ महनल को ऊपर उठा हुआ है। ऊपर करना। क्या टाइम पे हुआ ये वाकया? 2 बजे के टाइम। 2 बजे। ठीक है भाई। रियासत कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ जिले में दरियाए काली पर बना पुल मरम्मत के दौरान मुनहदम हो गया। तफसीलात के मुताबिक कारवार के सदाशिवगढ़ में काली नदी पर पुराने पुल का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा टल गया। कौमी शाहराह 66 पर गोवा और कारवार को जोड़ने वाला ये पुल इस्तेमाल में नहीं था और मरम्मती काम जारी थे। पुल गिरने का ये दूसरा वाकया है। गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में पुल मुनहदम हो गया था। केरला से गोवा जाने वाला एक ट्रक ड्राइवर हादसे में जख्मी हो गया था, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिदायत दी थी कि वो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने से पहले पुल के इस्तेहकाम का जायजा लें। ज़ेरे तामीर पुल के दोबारा गिरने का वाक़या पेश आया है और इससे जुड़ी तस्वीर और वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल रियासत के बल्दियाती इदारों में BC के लिए 42% रिजर्वेशन को नाफिज करना मुमकिन नहीं है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा कर रहे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सहाफ़ियों से बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर वाज़ेह किया कि फ़िलहाल रियासत के बल्दियाती इदारों में BC के लिए 42% रिजर्वेशन को नाफिज करना मुमकिन नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BC रिजर्वेशन के नफाज के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है और असम्बली इजलास में करारदाद अगले महीने के पहले हफ्ते में मंजूर की जाएगी और उसे मरकज़ भेजा जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला ने रियासत की नुमाइंदगी करने वाले मरकज़ी वज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय को चैलेंज किया है कि वो पार्लियामेंट में BC रिजर्वेशन को कानूनी शक्ल देने की जिम्मेदारी कबूल करें। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ात पात की मरदमशुमारी के सर्वे पे 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल रिजर्वेशन का नफाज न होने की खबरें मंजर आम पर आने के बाद BC तबके में मायूसी पाई जा रही है। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने वरंगल ज़िले में आज़मीन हज के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। वरंगल ज़िले के इस्लामिया कॉलेज में मुंतखब आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदरनशीन हज कमेटी ने तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। आज़मीन से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से उन्हें बेहतरीन खिदमात और सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। दरियासना हज कमेटी सदरनशीन ने कुंडा सुरेखा वज़ीर बराए जंगलात व माहौलियात और डॉक्टर अनीस सिद्दीक से मुलाकात की। हुजाज इकराम से भी मुलाकात की गई। रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में हलाक होने वालों के अहले खाना को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले अकीदतमंदों की भीड़ बढ़ने से हफ्ते की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। हादसे में 18 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है, जबकि 25 से ज़ायद जख्मी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने स्टेशन पहुंचकर वाक़े का जायजा लिया और मामले की आला सतही जांच का हुक्म जारी किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ वाक़े पर रेलवे की जानिब से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के अहले खाना को 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं शदीद जख्मियों को 2.5 लाख रुपये और मामूली तौर पर जख्मी लोगों को 1 लाख रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। भगदड़ हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ वाक़े से वो बहुत गमज़दा हैं और उन सभी लोगों के साथ वो ताज़ियत करते हैं जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खो दिया है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने अहदेदारों को तेलंगाना में कस्टोडियन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के ज़ेरे कब्जा दुश्मन अमलाक का जायजा लेने और सर्वे का काम मार्च के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है।
मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने बेगमपेट की होटल टूरिज्म प्लाजा में हैदराबाद, रंगारेड्डी, कोत्तागुड़म और विकाराबाद अजला में एनिमी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। आपको बता दें कि ये दूसरी मरतबा है जब बंडी संजय ने मरकजी वजीर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद एनिमी प्रॉपर्टीज़ का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गुज़िश्ता नवंबर में किए गए इजलास से मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल की। रंगारेड्डी ज़िला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों ने उन्हें मुख्तलिफ तफसीलात से वाकिफ करवाया। दरियासना बंडी संजय कुमार ने ओहदेदारों को तेलंगाना में कस्टोडियन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के ज़ेर कब्जा दुश्मन अमलाक का रिकॉर्ड इकट्ठा करने, उसका जायजा लेने और सर्वे का काम मार्च के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। खातों का तस्फिया करने का भी हुक्म दिया है। रियासत तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह पर भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने वेंगलराव पार्क, पंजागुट्टा में पौधे लगाए। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह व तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर आज पार्टी कायदीन और कारकुनान ने मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की है। हैदराबाद के पंजागुट्टा में वाक़ वेंगलराव पार्क में भी भारत राष्ट्र समिति के कायदीन और कारकुनान ने पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में बीआरएस के साबिक कॉरपोरेशन चेयरमैन व दीगर ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शजरकारी का ये प्रोग्राम ग्रीन इंडिया चैलेंज के वृक्ष अर्चना प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जो कि केसीआर को उनकी सालगिरह के मौके पर एजाज़ देने के लिए वक्फ किया गया है। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन और कारकुनान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया है और केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश की है। कांग्रेस रहनुमा जग्गा रेड्डी ने सोनिया गांधी को ईसाई बताने पर बीजेपी रहनुमा बंडी संजय पर तनकीद की और कहा कि बीजेपी कायदीन को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खानदान पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ात पर किए गए तबसरे तनाज़े का सबब बन गए हैं और बीजेपी कायदीन इस बात को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी रहनुमा बंडी संजय कुमार की जानिब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कास्ट पर किए गए तबसरे पर कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने इतवार को गांधी भवन में मीडिया से बात की और कहा कि राहुल गांधी का ताल्लुक ब्राह्मण खानदान से है। उन्होंने बंडी संजय कुमार को मशवरा दिया कि अगर उन्हें कोई शक है तो वो हक़ाइक़ की जांच कर सकते हैं। जग्गा रेड्डी ने सोनिया गांधी को ईसाई बताने पर बंडी संजय पर तनकीद की और सवाल किया कि बीजेपी लीडर क्या इस बात से बेखबर हैं कि एक बच्चे की ज़ात वही होती है जो उसके वालिद की ज़ात होती है। जग्गा रेड्डी ने मजीद कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद गांधी खानदान ज़ात पात और मजहब से बालातर रहा और गांधी खानदान ने कभी भी ज़ात को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जग्गा रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कायदीन को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खानदान पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। ద్వారా ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ముఖ్య ఉద్దేశము నిన్న బండి సంజయ్ గారు వారు సెంట్రల్ మినిస్టరు అందరికి తెలిసిందే. బండి సంజయ్ గారు కొన్ని వారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన మా నాయకుల మీద, మా నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క కుటుంబం మీద వారు కొన్ని ప్రశ్నలు వేయడం జరిగింది. కొన్ని ప్రశ్నలు వేయడం జరిగింది. నేను ఆ ప్రశ్నలకు కొంత అంటే వారికి అవగాహన గురించి బండి సంజయ్ గారికి అవగాహన గురించి, బండి సంజయ్ గారితో పాటు బీజేపీకి సంబంధించిన వాళ్ళ పార్టీ నాయకుల కార్యకర్తలకు లేదా ఇప్పుడున్న కొత్తగా ఉన్న మన రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొత్త జనరేషన్ సంబంధించి కానీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులకు ఒక వాళ్ళకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకపోవచ్చు. అంటే ఈనాటి ఇది రాహుల్ గాంధీ గారు అంటే ఈనాటిది కాదు, ఇది ఒక చరిత్ర. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात एक भगदड़ का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत कम से कम 16 अफराद हलाक और कई अफराद ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 पर
رات تقریباً 9:30 بجے کے قریب پیش آیا، جس نے بنیادی طور پر پریاگراج میں مہاکمبھ میلے کے لیے جانے والے مسافرین میں ہلچل پیدا کر دی۔ پریاگراج جانے والی 2 ٹرینوں کے منسوخ ہونے کی وجہ سے مسافروں میں غیر متوقع بھگدڑ مچ گئی۔ اس کی وجہ سے پلیٹ فارمز پر عوام کا ہجوم دیکھا گیا اور جیسے ہی بھیڑ بے قابو ہو گئی، خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابراہیم پٹنم آؤٹر رنگ روڈ میں مردہ مرغیوں کا ڈھیر دیکھا گیا۔ ان مرغیوں کے برڈ فلو یا دیگر بیماریوں کے باعث ہلاک ہونے کا شبہ ہے۔ کھلے عام پھینکی گئی مردہ مرغیوں سے مقامی افراد میں تشویش کی لہر دیکھی گئی۔ مرغیوں کو مناسب طور سے دفنانے کے بجائے سڑک کنارے پھینک دینے سے عوام میں خوف اور بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ پلناڈو ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے پیدانی ملی پورم کے قریب اس وقت پیش آیا جب لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری کار سے ٹکرا گئی۔ یہ افراد کار میں حیدرآباد سے پرکاشم ضلع جا رہے تھے۔ مالکین کی شناخت 50 سالہ شیخ ناظمہ، 26 سالہ شیخ نور اللہ اور 24 سالہ شیخ حبیب اللہ کے طور پر کی گئی۔ کوشا محل کے چکناواڑی کا نالہ ایک مرتبہ پھر منہدم ہو گیا۔ گزشتہ 3 برسوں میں 6 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں ٹریفک متاثر ہو گئی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ و BRS کے صدر کے چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کے سلسلے میں مکھرا کے گاؤں کے رہنے والوں نے بڑے پیمانے پر شجر کاری کی۔ ان گاؤں میں رہنے والوں نے تقریباً 500 پودے لگائے۔ گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر یہ پودے لگائے گئے۔ بسنت نگر کے ایک لاری مالک انیل گوڑ نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ لاری پر چڑھ کر پیداپلی RTO آفس میں برقی کے تاروں کو پکڑ لے گا۔ مبینہ طور پر RTO عہدیداروں نے معمول کا ٹول نہ دینے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ اس بات کے الزامات بھی ہیں کہ ہر لاری کے لیے ماہانہ 8,000 روپے رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے ریلوے جنرل کوچز کی تعداد میں کمی کر رہا ہے، جو زیادہ تر غریب اور متوسط طبقے کے افراد استعمال کرتے ہیں۔ کافی جنرل کوچز کی کمی کی وجہ سے لوگ AC اور سلیپر کوچ میں سوار ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی اس کا شکار ہے۔ بلٹ ٹرین اور وندے بھارت کے مطالبات میں اس سلسلے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، بلکہ جنرل کوچز کی تعداد میں بھی اضافے کے مطالبات مختلف گوشوں سے کیے جا رہے ہیں۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد تارک راما راؤ نے نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر پیش آئے بھگدڑ کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ میری دلی تعزیت متاثرین کے افراد خاندان کے ساتھ ہے۔ ان کو اس مشکل وقت میں طاقت اور سکون ملے۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سسلی کے ماؤنٹ اینٹینا نے ایک نایاب اور شاندار نظارہ پیش کیا جب پگھلا ہوا لاوا برف سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں ایک زوردار بھاپ کا دھماکہ ہوا۔ یہ انوکھا منظر، جو شدید درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے پیدا ہوا، ایک محفوظ علاقے میں گائیڈڈ تجربے کے دوران کیمرے میں قید کیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔